हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास में सबका स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है क्लास 11 केमिस्ट्री एंड लेसन इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो उसमें टॉपिक लेते हैं ट्रेंड्स इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर in periodic table. Trends in metallic and non-metallic character in periodic table. So metallic character increases down the similar group and non-metallic character increases from left to right along a period. Metallic character increases down the similar group and non-metallic character increases from left to right along a period. So metallic character of elements increases. Metallic character of increases means metallic character of elements increases down the similar group and non-metallic character of elements increases from left to right along a period in periodic table. So this is the trend of metallic and non-metallic character of elements in periodic table. Advantages of the present form of the periodic table, यानी आप कह सकते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल के क्या एडवांटेज हैं, क्या फायदे हैं? एडवांटेजेस ऑफ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के क्या फायदे हैं? सो it relates to the position of elements. It relates to the position of elements in the table to its electronic configuration.
It relates to the position of elements in the table to its electronic configuration. मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे किसी भी एलिमेंट का पोजीशन हम फाइंड कर सकते हैं. तो ये इस प्रेडिक्ट टेबल का एडवांटेज है. It is easy to remember and reproduce. It is easy to remember and reproduce due to modern predict table. The property of elements in same group, the properties of elements in same group are marked similar. It means almost similar. The properties of elements in same group are marked similar. It has become easy to understand the properties. It has become easy to understand the properties of due to it has become easy to understand the properties due to distribution of elements in block या blocks. For example, S block, P block, D and F block. चूंकि प्रेडिक्ट टेबल को ब्लॉक में भी बांटा गया है, एलिमेंट्स को ब्लॉक में भी बांटा गया है, तो उसके वजह से प्रॉपर्टीज को समझना और अंडरस्टैंड करना काफी आसान हो गया है. Elements are categorized into normal, non-metals, metals, metalloids, transition and inner transition. Elements are categorized into normal, non-metals, metals, metalloids, transition and inner transition category. Or you can say inner transition
ग्रुप्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल में हमें भी पता चलता है कि नॉर्मल एलिमेंट कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, मेटल का कौन सा है, मेटलाइट्स क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं और इनर ट्रांजिशन ग्रुप्स क्या है। तो ये सब कुछ एडवांटेज हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, और यू कैन से प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के। तो डिफरेंटली यदि एडवांटेज हैं तो कुछ इसके डिफेक्ट भी होंगे। तो देखते हैं कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट्स क्या क्या हैं। Defects in the present periodic table. Defects in the present periodic table, माने जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या खामियां हैं, क्या डिफेक्ट्स हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटल्ड। Position of hydrogen is not settled since it shows the behavior of group 1 and group 17, since it shows the behavior of group 1 and group 17, but kept in ग्रुप 1, लेकिन ग्रुप 1 में रखा गया। इसका बिहेवियर जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 17 की तरह है। जैसे ग्रुप 1 का बिहेवियर है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, तो हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1 होगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 1+ चार्ज शो करता है, यानी कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। और ग्रुप 17 की तरह इसलिए बिहेव करता है कि किसी किसी केस में ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, यानी जो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है तो एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑर्बिटल कंप्लीट कर लेता है। सो हाइड्रोजन दोनों तरह से बिहेव करता है, ग्रुप 1 की तरह बिहेव करता है और ग्रुप 17 की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसका पोजीशन ग्रुप 1 के साथ रखा गया है। सो द डिफेक्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सेटल्ड। एंड दूसरा, लैंथेनाइड्स एंड actinides have not been
accommodated. Lanthanides and actinides have not been accommodated in the main body of periodic table. लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स को पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी में नहीं रखा गया है, क्योंकि आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को दोनों पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे रखा गया है। पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे रखा गया है, सबसे पीरियोडिक टेबल के नीचे लैंथेनाइड्स रखा गया है और लैंथेनाइड्स के नीचे एक्टिनाइड्स रखा गया है, यानी उसके मेन बॉडी में नहीं रखा गया है। तो ये भी एक इस पीरियोडिक टेबल की का डिफेक्ट है कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स को, यानी कह सकते हैं कि ए ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के मेन बॉडी के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया गया है, मेन बॉडी की तरह रखने का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया। तो ये भी एक इस पीरियोडिक टेबल का एक डिफेक्ट है। Prediction of period group and block of a given element. प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ ए गिवन एलिमेंट, जिसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, किस कोई एलिमेंट दिया हुआ है तो उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन से पीरियडिक एलिमेंट है, या कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, या कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। So the period of element, the period of element corresponds to its principal quantum number of valence cell. The period of element corresponds to its principal quantum number of valence cell. यानी जो वैलेंस सेल होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज इक्वल टू द पीरियड। The block of an element corresponds to its type of orbital. The block of an element corresponds to its type of orbital in which last electrons, or you can say last electron,
enters. Block of an element corresponds to type of orbital in which last electron enters. यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में या जिस सबसेल में एंटर करता है या जिस टाइप ऑफ ऑर्बिटल में एंटर करता है, दैट इज द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट. एंड the group of an element corresponds to its number of electron present in valence shell or penultimate shell. The group of an element corresponds to its number of electrons present in valence shell or and penultimate shell. इसको थोड़ा ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट को हम थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो है in case of S block, in case of S block elements, group number is equal to the number of electrons in valence shell. यदि S ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल. इन केस ऑफ P block elements, in case of P block elements, group number is equal to the ten plus number of electrons present in वैलेंस सेल. यदि P ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, यदि P ब्लॉक एलिमेंट्स होगा तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल. यानी वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसमें 10 जोड़ देंगे तो विल गेट द ग्रुप नंबर, ये विल गेट द ग्रुप. एंड in case of
block elements. Group number is equal to the number of electrons in n minus 1 d subcell plus number of electrons in वैलेंस सेल, आप कह सकते हैं nth सेल। तो डी ब्लॉक एलिमेंट केस में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n माइनस 1 डी सब सेल एंड प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, दैट इज nth सेल। तो ग्रुप के तीन कंडीशन है। एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो ग्रुप नंबर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। यदि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। और यदि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा तो ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n minus 1 d subcell, that is penultimate cell electron, and number of electrons in ultimate cell। दोनों को जोड़ने के बाद ग्रुप नंबर निकल जाएगा। इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration of the elements given below। Also predict the period, group number and block of elements। इसमें तीसरा टेलिंग क्वेश्चन है कि क्लासिफाई देम एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और नोबल गैस ट्रांजिशन एलिमेंट्स
and inner transition elements. Write the electronic configuration of the elements given below. Also predict the period, group number and block of elements. Classify them as representative elements, noble gas transition elements and inner transition elements. And the ये दिया हुआ है एटॉमिक नंबर इसका 9 है। क्वेश्चन बी में एक एलिमेंट दिया हुआ है बी और इसका एटॉमिक नंबर 12 है और एक सी है, दैट इज द सी एलिमेंट एंड इसका एटॉमिक नंबर है 29। तो इसको सॉल्व करते हैं। एलिमेंट ए दिया हुआ है फर्स्ट में और इसका एटॉमिक नंबर है 80 नंबर इक्वल 9। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p5, टोटल 9 हो गया। इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाल दिया। अब इसके बाद पीरियड निकालना है। तो पीरियड इक्वल यहाँ लिख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इक्वल 2 होगा, क्योंकि वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो पीरियड हो जाएगा 2। नेक्स्ट निकालना है, हमें ग्रुप निकालना है। सो ग्रुप इक्वल, ग्रुप निकालने के लिए यहां देख रहे हैं कि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो ग्रुप इक्वल 10 प्लस 2 एंड 5 जोड़ देंगे तो ये 7, दैट इज ग्रुप हो जाएगा 17। और नेक्स्ट निकालना है ब्लॉक। सो ब्लॉक इज लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है, सो दिस इज पी ब्लॉक। और जो एक टेलिंग इसमें क्वेश्चन है कि यू हैव टू क्लासिफाई देम एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और नोबल गैस। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो यहां लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा बी क्वेश्चन लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर इज 12। इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 और सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 12। सो यहाँ पे वैलेंस सेल इज थर्ड से वैलेंस सेल। सो पीरियड इक्वल n इक्वल 3 और ग्रुप वैलेंस सेल
थर्ड सेल इज अ वैलेंस सेल, और थर्ड सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 2 है, और इस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ग्रुप इज 2। इसके बाद ब्लॉक देख लेते हैं कौन सा ब्लॉक है। सो ब्लॉक इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर किया है, यानी एस ऑर्बिटल में एंटर किया है। सो ब्लॉक इज एस ब्लॉक, दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट। और हमें पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इस तरह से किसी दिए हुए एलिमेंट का यदि एटॉमिक नंबर दिया हुआ तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ कौन से पीरियड का एलिमेंट है वो डिसाइड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और कौन से ग्रुप का है ये भी निकाल सकते हैं, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है ये पता कर सकते हैं, और उसका कैटेगरी वाइज उसका किस कैटेगरी में आता है ना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आएगा, नोबल गैस में आएगा, या ट्रांजिशन या इनर ट्रांजिशन में आएगा, वो भी फाइंड कर सकते हैं। सी एलिमेंट दिया हुआ है सी, और जिसका एटॉमिक नंबर है इज 29। सो इसका कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s1। इसको सबको जोड़ेंगे तो ये आएगा 29। सो पीरियड पहले देख लेते हैं, पीरियड इक्वल n, यानी कि वैलेंस सेल इज 4 सेल और वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो पीरियड इक्वल n इक्वल 4। एंड ब्लॉक देख लेते कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में है, तो दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप इक्वल हमने बताया था कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप डिसाइड करेंगे तो n-1 डी सब सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा प्लस लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, सो इसका ग्रुप हो जाएगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, सो 10, और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 10 + 1, सो ग्रुप इज 11। और इसका ये देखना है कि ये एलिमेंट से कौन से कैटेगरी में आता है, सो दिस इज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सो लिख सकते हैं इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई एलिमेंट दिया हुआ है, यदि उसका एटॉमिक नंबर हमें दिया है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने के बाद उसका हम पीरियड निकाल सकते हैं, ग्रुप निकाल सकते हैं, ब्लॉक निकाल सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि वो किस तरह का एलिमेंट है, नोबल गैस है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है या नॉर्मल एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ये ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।